Yes, students, as we have discussed yesterday, that from today we'll start with a revision of give it to if it is completed, otherwise give it tomorrow. Completed? फिर क्यों नहीं दी आपने मॉर्निंग में कॉपी? Yes. Listen. So as we have discussed yesterday, that today we'll start with the revision of algebraic expression. Where is your book? At least one book should be there on a bench. बुक में देखो अपनी. Let us start revising algebraic expression. Let us start with the revision of algebraic expressions. No need to make any kind of noise and get ready with your revision notebooks. Open up your notebook, get ready with your pen, pencil, whatever. Page number 229, algebraic expression. Yes. So first of all, let us recall, we have done the definition of algebraic expression. Let us recall that what is algebraic expression. So, you know, before starting the definition of algebraic expression, I told you about two things. One is the constant and another is variable. One is constant, another is variable. So if we are talking about constant, we all know that constants are those values, those expression which remains fixed. जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है उनको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट. दे आर हैविंग फिक्स्ड वैल्यूज. जैसे कि हमारे पास है 2 3 4 5, all they are having the fixed values. For me, if a number is 2, then for the whole word it will be 2. The whole word will read it as 2. अगर मैं यहाँ पे 2 लिखती हूँ तो सब इसको 2 रीड करेंगे. ठीक है? And if we are talking about variables, variables are those values which varies. जिनकी वैल्यू हमारे पास वेरी करती है उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स. ठीक है? That are the constants and the variable. When we join these constants and the variable by certain mathematical symbols, mathematical symbol that means plus, minus, multiply, division. जब हम प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई के साइंस के साथ इनको कंबाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग x plus 5, I am writing 2x multiply 5, I am writing 3x minus 5, then all these they becomes algebraic expression. So during through this discussion we can conclude that algebraic expression is the combination of variables and constant connected by mathematical operations or arithmetical operations. तो पहली डेफिनेशन हमारी algebraic expression की हो गई, that algebraic expressions are, you can say, combination of constants and variables connected by certain arithmetical operations. arithmetical operations के साथ जब constant and variable जो हैं वो आपस में join होते हैं तब हम उसको बोलते हैं क्या? algebraic expression. ठीक है? The next thing that we have, this is how the algebraic expression is formed. Then we have discussed about the terms of algebraic expression. Suppose what happened? Where is your book? Next, we did about the terms of algebraic expression. If we are talking about terms of algebraic expression, then it is very clear that suppose we are having an algebraic expression 4x square plus 5x plus 9.
So I told you that in mathematics, after plus and minus sign, the next term is started. So if I am talking about the terms of this algebraic expression, you can say that this is the first term. Ft means first term. 5x means st, second term, and 9 is the third term. These are the terms of the algebraic expression. They are separated by the mathematical sign, either plus or minus. अगर हम मल्टीप्लाई के, अगर यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई के साइन में ऐसे हो 4xyz, तो ये सिंगल टर्म ही होगी. रीजन, क्योंकि इसमें प्लस माइनस का साइन नहीं आ रहा. तो अगर मैं नेक्स्ट आपके सामने एक एग्जांपल लिखती हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 9. सो first bench, Jasmine, tell me what is the first term of expression? बैठ जाओ. हाँ जी देवांग, सेकेंड टर्म गलत, माइनस 5x. अगर माइनस का साइन, अगर प्लस का साइन साथ हो तो लिखने की जरूरत नहीं, बट इफ माइनस साइन इज देयर then you have to mention the minus sign in the answer of the term. Next girl, बच्चे, what is the third term? Minus 9. This is how we detect the term of algebraic expression. ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हुआ जिसमें हमने टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिफाइन की. तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये फर्स्ट टर्म है? पेपर में तो आपने पूरा लिखना है, मैंने तो एफटी शॉर्ट में लिख दिया. यू विल राइट फुल फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म. चलिए, देन वी डिड the factors of the terms. मान लो हमारे पास एक अलजेब्रिक एक, अब हम बात करेंगे फैक्टर्स की. अगर हम फैक्टर्स की बात करें, प्रीवियसली व्हाटएवर वी हैव लर्नड अबाउट द फैक्टर्स, अगर वहां से हम इस चीज को उठाएं तो वो हमें पता है कि फैक्टर्स, जब हमने नंबर्स की फॉर्म में फैक्टर्स को सीखा था, we know that teachers told us that make the factor of 56 and we break it like this. We break it in the factors like this. Or sometimes children, they used to break it like this also. बच्चे इसको ऐसे भी तो ब्रेक कर सकते हैं. अगर मैंने इसको ब्रेक करने के लिए बोला तो you can break it like this also. But the thing is, if you are breaking it like this, you will not be able to find all the factors of 56. So when we are finding out all the factors of a number, we break it with the smaller to smaller number. हम छोटे से छोटे नंबर से इसकी ब्रेकिंग शुरू करते हैं. We know that 56 can come in table of 4, but still we break it with the table of 2 initially, because for finding all the factors we have to choose the smaller factor. सबसे छोटे से छोटा हमने इसको ब्रेक किया था and we get the factors. इसी तरह से algebraic expression में जब factors की बात आएगी, we will try to break each and every term to the linear power. linear का मतलब होता है 1. ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं. जैसे कि बुक में दिया हुआ आपके 4x स्क्वायर माइनस 3xy, ये आपका जो है वो एक्सप्रेशन है. अब इसमें सबसे पहले हम डिफाइन टर्म्स को अलग अलग कर लेते हैं. फर्स्ट टर्म है 4x स्क्वायर और यहाँ पे टर्म है माइनस 3xy. दिस इज 4x स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 3xy. अब अगर हम 4x स्क्वायर की बात करें तो वी कैन ब्रेक दिस 4x स्क्वायर. अब कुछ बच्चे कहते हैं 2 into 2 9. हमने इसके टर्म्स के फैक्टर्स का मतलब होगा कि उसको हम जितना अलग अलग बिठा सकते हैं, इनमें से किस किस को अलग अलग किया जा सकता है. दैट इज द मीनिंग ऑफ द फैक्टराइजेशन ऑफ द टर्म. सो अगर मुझे इसमें से अलग करने की बात आए तो मैं 4 को अलग कर सकती हूँ, राइट. x स्क्वायर है यानी कि 1x एंड देन अनदर x. So these 3 becomes the factors of the given term. ये 3 बन गए हमारे पास given term के factor. अगर हम बात करें इसकी माइनस 3xy की, तो you can see that this minus 3xy I can write it like minus 3
एक्स वाई, -3x एंड y। तो ये 3 फैक्टर्स हमारे इसके पास है। जैसन जो भी कोई क्वेरी है आप मेरे से पूछो। हाँ जी, हाँ ये ट्री डायग्राम, हाँ जी। चलिए, ये था हमारा कॉन्सेप्ट कि हमने टर्म्स के फैक्टर्स को कैसे फाइंड करना है। राइट डाउन 2 होमवर्क पार्ट्स दैट यू विल डू इन योर रिवीजन नोटबुक। ट्राई दीज वाले हैं, मैं लिखवा देती हूँ। राइट द फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स, राइट द फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स for try these, for try these, for try these page number 231, for try these page number 231 question number 1 2, try these page number 231 question number 1 2 के आपने जो हैं वो फैक्टर्स अपनी कॉपी पे करने हैं। हाँ, of the for at page number 231 question number 1 2, try these page number 231 के फर्स्ट एंड सेकंड आपने करने हैं। अच्छा, इसमें जैसे सेकंड ट्राई दिस है, राइट 3 एक्सप्रेशन हैविंग 4 टर्म्स, 4 टर्म्स जिसमें वो आपने एक्सप्रेशन लिखने, कुछ भी लिख सकते हो आपको, आप बस आपको टर्म्स का नंबर काउंट करना आना चाहिए। देखो, हाँ जी, आ सकता है, क्यूब स्क्वायर कुछ भी आ सकता है। 4x क्यूब प्लस 5x प्लस 9 प्लस z, कुछ भी लिख सकते हैं। 4 टर्म्स होनी चाहिए। यू कैन इनकलकेट माइनस इन बिटवीन, प्लस कुछ भी आप कर सकते हो, बट एक्सप्रेशन शुड हैव हाउ मेनी टर्म्स? 4 टर्म्स। एक्सप्रेशन में हमारे पास 4 टर्म्स होनी चाहिए। इज इट ओके? चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट अपने, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, यू कैन सी दैट इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देयर आर वेरी स्मॉल डेफिनेशंस एंड कॉन्सेप्ट, सो 1 मार्क आएंगे इसमें। आपने क्या लिख दिया? एक ही एक्सप्रेशन है जिसकी 4 टर्म्स है, तो आपने खुद लिखने हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, दिस इज सिंगल एक्सप्रेशन। हाँ, मैंने एक बताया है, बाकी 2 आपने खुद लिखने हैं। अगर 3 टर्म्स आएंगी पेपर में, देन अकॉर्डिंगली यू विल मैनेज। इफ 2 टर्म्स आर देयर, देन अकॉर्डिंगली, इफ 1 टर्म इज देयर, देन अकॉर्डिंगली। चलिए, यस बच्चे लिसन। नेक्स्ट इज द definition of coefficient. What is the meaning of coefficient? Let me tell you. अब देखो जरा पेज नंबर 231 पे, we have learned how to write the terms as a product of the factor. One of these factor may be numerical and other algebraic. They contain variable. The numerical factor is said to be numerical coefficient or simply the coefficient of the term. It is also said to be the coefficient of the rest of the term, the product of algebraic factors. Thus, if in 5xy, 5 is the coefficient of the term, it is the coefficient of xy. In 10xyz, 10 is the coefficient of xyz, and in minus 7xy square, minus 7 is the coefficient. When the coefficient of term is +1, it is usually omitted. हम उसको छोड़ भी सकते हैं, मैं बताऊंगी, सारा एक्सप्लेन करती हूँ। For example, 1x is written as x, 1x square y square is written as this, and so on. Also the coefficient -1 is indicated only by the minus sign. चलो सारा कुछ मैं अब जो भी पढ़ रही हूँ आपको समझाती हूँ। लिसन, अगर हम कोफिशिएंट्स की बात करें, नेक्स्ट 2 तरह के क्वेश्चंस, 2 तरह के हम इसमें इंडिकेशंस देख सकते हैं। One can be write coefficient of minus 5x square y square, and then write coefficient of, write numerical coefficient of
नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो मैंने 2 क्वेश्चंस आपके सामने लिखे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कोफिशिएंट. कोफिशिएंट का मीनिंग क्या है, लेट मी टेल यू. अगर हम कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट होता है पूरी टर्म के बीच में जो आपके पास कांस्टेंट इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट. राइट द कोफिशिएंट ऑफ दिस. तो आपने क्या करना है, वेरिएबल्स को छुपा लेना है, जो बचा वो आपका बन जाएगा कोफिशिएंट. सो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म, -5. व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म, -5. Sometimes in exam it is also written that write the numerical coefficient of this. Numerical coefficient का मीनिंग होता है नंबर, सिर्फ वेरिएबल्स को छोड़ के. एक ही बात है, whether it is written coefficient और numerical coefficient, आपने आंसर आपका -5 ही बनना है. ठीक है. सो कोफिशिएंट मींस वेरिएबल्स को छोड़ के जो बचा है. पेपर में अगर आ जाए राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² y², तब क्या लिखोगे, -5 जो उसके सामने लिखा हुआ है. देखो, जिसका कोफिशिएंट पूछा है उसको, मान लो मैंने इसी टर्म में मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y², -5x², उसको छुपा के जो बचता है. ठीक है. अगर मैं यहां से आपसे पूछती हूँ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म्स, एक मिनट, सिंपली आंसर इज 2. इफ आई एम आस्किंग यू what is the coefficient of this term, simply answer is -3. but if I am asking you what is the coefficient of xyz, तब भी 2. what is the coefficient of xyz, what is the coefficient of yz, what is the coefficient of yz, what is the coefficient of z, and what is the coefficient of z. जिसका कोफिशिएंट पूछा है उसको छुपा लेना है, बाकी कोफिशिएंट बने. अगर सिंपल कोफिशिएंट पूछा है तो सारे वेरिएबल्स को छुपा के जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी दैट विल बी द आंसर फॉर द कोफिशिएंट. चाहे न्यूमेरिकल वर्ड आए चाहे ना आए, हम एक ही बात. हाँ, वैसे 1, हम इसको 1 बोल देते हैं. व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस, 1. वैसे देखो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इफ द कोफिशिएंट इज 1 इट इज यूजुअली ओमिटेड. आप उसको छोड़ भी सकते हो. ठीक है. बट अगर आप पेपर में 1 लिख भी आओगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि लिखना पड़ेगा आपको कोफिशिएंट इज 1. ठीक है. क्योंकि अगर उसके आगे न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी मल्टीप्लाई हो रही है, 1. हाँ लिसन, हाँ ये बच्चे ने बात ठीक बोली है कि मैम अगर तो xy आया फिर तो हम 1 लिख देते हैं कोफिशिएंट, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, उसके आगे 1 है. बट अगर -xy आता है देन द कोफिशिएंट इज -1. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट माइनस साइन इज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन. सो इफ -xy इज देयर यू विल राइट द कोफिशिएंट टू बी -1. इज इट ओके? ट्राई दी, साथ वाले दिए हुए हैं, ये होमवर्क करोगे आप एट द बॉटम. आइडेंटिफाई द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. अब मैं सबसे पहले आपको करवाने लगी हूँ एग्जाम्पल नंबर 1. ये थे हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. और उसके साथ साथ आपको होमवर्क असाइन हो रहा है. अपनी रफ नोटबुक आपने रिवीजन नोटबुक साथ में लेके आनी है और वो वाला होमवर्क आपने रिवीजन कॉपीज पे करके आना है. एनी लकी ड्रॉ कैन बी टेकन. ठीक है. चलिए लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 1. Identify in the following expression the terms which are constant and give their numerical coefficient. हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं. बेटे बातें नहीं, नो टॉकिंग इन बिटवीन. नो.
देखो क्या है क्वेश्चन. These algebraic expressions are given to us. So you can see there are 4 algebraic expression I am writing on the board. So what we need to do, we need to write the terms of each of the expression which is not involving constant. Constant term को छोड़ के जो भी terms इस expression में हैं, we have to write those terms. तो अगर हम बात करें constant term को छोड़ के फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में कांस्टेंट है 4, उसको छोड़ के टर्म कौन सी है? और इफ आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, एक मिनट, अब टर्न आया करेगी. उधर से 3 स्टूडेंट्स की टर्न हो चुकी है, सबकी टर्न आएगी. नेक्स्ट कॉल, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ xy? 1. शाबाश. नेक्स्ट कॉल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी द टर्म व्हिच इज नॉट कांस्टेंट. इस एक्सप्रेशन में कौन सी टर्म कांस्टेंट नहीं है? -y स्क्वायर बोलते हैं इसको. शाबाश. इट इज -y स्क्वायर. कैन यू टेल मी इट्स कोएफिशिएंट? योर नेम इज जैस्मिन. तन्वी, बी कॉन्फिडेंट, यू आर टेलिंग मी द राइट आंसर. राइट, क्या होएगा? -1. आपको पता है एक बार करोड़पति में एक बॉय था, ही वाज टेलिंग द आंसर ऑफ फॉर द क्वेश्चन ऑफ 1 करोड़ एंड उसको बिल्कुल नर्वसनेस नहीं थी क्योंकि उसको पता था कि मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है. ही वाज टेलिंग सो कॉन्फिडेंटली, है ना, जबकि वहां पे उसको नर्वसनेस तो हो सकती थी. आपको सब कुछ अच्छे से आता है फिर भी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो. मैं -y स्क्वायर, ऐसे नहीं, कॉन्फिडेंट बनो. हाँ जी, बिल्कुल ठीक बताया तन्वी ने, दैट द टर्म which is not containing, which is not constant term, this is -y square and its coefficient is -1. नेक्स्ट गर्ल, बच्चे नेम बता दो फटाफट अपना. गुरनूर, which what are the terms, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, which are no. शाबाश. और वेरी गुड. what is the numerical coefficient of y? नेक्स्ट गर्ल जैस्मीन. हाँ जी, y का कोफिशिएंट. वेरी गुड. एंड 5y स्क्वायर का. वेरी गुड, बैठ जाओ. नेक्स्ट, आप बताओ अगमजोत, कौन कौन सी टर्म्स हैं जिसमें जो कांस्टेंट टर्म नहीं है? फर्स्ट बेंच पे बैठे हो, इतने बच्चों ने आंसर्स दे दिए, इवन देन यू आर नॉट एबल टू टेल मी द आंसर. सी दैट हाउ अटेंटिव यू आर इन द क्लास. 4 इज द टर्म व्हिच इज मतलब नॉट कांस्टेंट. शाबाश. आप बताओ. हंस के गुजारा नहीं होना. नेक्स्ट बॉय, 4p स्क्वायर q. ठीक है. और कांस्टेंट को छोड़ के जो टर्म्स है वो बतानी थी. ये कांस्टेंट है, ये वाली टर्म्स है, इतना नहीं बताया जा रहा आप दोनों से. इट मींस यू आर नॉट अटेंटिव इन द क्लास. बैठ जाओ. नेक्स्ट माधव, टेल मी इट्स कोफिशिएंट. बैठ जाइए. नेक्स्ट गर्ल, कोफिशिएंट. चलो. होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द टर्म्स व्हिच आर नॉट कांस्टेंट, जो कांस्टेंट टर्म नहीं है. हाँ जी, 1 जिसके आगे कुछ नहीं है उसके आगे 1 लिखा होता है ना, तो इसलिए 1 लिख के आएंगे पेपर में. जिसका कोई नहीं उसका भुगतान होता है. इसी तरह से मैथ्स में जिसके आगे कोई नहीं लिखा होता है उसके आगे 1 होता है. हाँ हाँ हाँ. हाँ जी, एग्जाम्पल 2 का बी पार्ट आपका होमवर्क है. एग्जाम्पल 2 का बी पार्ट नोट करके जाओ. कोई रिवीजन कॉपी पे ये बच्चे नोट नहीं कर रहे दोनों, और कुछ बता भी नहीं रहे. हाँ जी, हाँ जी. उसने बोला वो वाली टर्म्स लिखो विच आर नॉट कांस्टेंट. ये तो कांस्टेंट टर्म है, फिर ये कैसे लिख सकती हूँ? एक मिनट बताओ. एक मिनट. हाँ. क्यों बच्चे? टर्म्स, वो वाली टर्म बताओ जिसमें कांस्टेंट, जो कांस्टेंट टर्म नहीं है. कौन सी टर्म है जो कांस्टेंट? मैं पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो. इनमें से कौन सी टर्म्स हैं? उसने बोला टर्म्स व्हिच इज नॉट कांस्टेंट. जो कांस्टेंट टर्म नहीं है वो कौन कौन सी है? 5y स्क्वायर.
टर्म है बेटे, ये टर्म के साथ जो लिखा हुआ उसको उठाना पड़ेगा, टर्म को तो उठाना ही पड़ेगा। 5 के आगे प्लस का साइन है, इसका मतलब ये टर्म बन गई, तभी टर्म बनती है। टर्म्स मैंने कभी अभी तो डिटेक्ट करनी सिखाई नहीं टर्म्स। दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, फिर माइनस उठाना था साथ में।